बिस्ला जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं अंबेडकर विश्वविद्यालय से। मैं उनका फिर एक बार स्वागत करता हूं और सभी अपने प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। अपने इस कार्यक्रम की संयोजिका एवं अध्यक्ष मैम की अनुमति से सर से निवेदन करता हूं कि आप हम सबको अपने ज्ञान से आप लाभित करें। डॉक्टर दीपक बिस्ला जी, थैंक यू सर। या तो हम बात कर रहे थे असाइनमेंट की। नॉर्मल असाइनमेंट वी हैव क्रिएटेड, दिस वन इज नॉर्मल असाइनमेंट वी क्रिएटेड। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट ए रुब्रिक असाइनमेंट। तो रुब्रिक असाइनमेंट के लिए प्रोसीजर भी रिमेन सेम कि आपको एक क्लास वर्क में आइए, देन क्रिएट असाइनमेंट, राइट। So in the assignment, the title name is anything that I put it here, rubric assignment, and in instructions if you wish to upload here, or add the assignment via Google Drive, link, file, or YouTube from anywhere. I just uploading via file, right? So I'm uploading my assignment here and upload, right? So it's done now. नाउ अगेन आई हैव ऑप्शन की कौन से कोर्स में मुझे शेयर करनी है असाइनमेंट, कौन से स्टूडेंट्स पे रखनी है, किसी स्टूडेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं, एंड पॉइंट कितने होंगे असाइनमेंट के। लेट्स टेक 10 पॉइंट। ड्यू डेट क्या होगी असाइनमेंट की, लेट्स टेक ड्यू डेट एंड टाइम, and under which topic, let's say under unit 2. Now here is the option rubric, new option is here, rubric. So I'm going to create a new rubric here, create a rubric, right? So create rubric. Now first option is use scoring, and yes, of course, enable it. Now in rubric, you know, एक criteria होता है, and then further here you can see, have a look, one is criteria, and then उसके further 5 options होते हैं. Based on these options we allows that evaluate student, okay, you did excellent or not acceptable or acceptable, and like that, right? So first criteria is here, just for example purpose मैंने एक ये rubric evaluation project proposal बनाया है, otherwise that can be a, anything जो आपको ठीक लगे बना सकते हैं, जैसे just for a sample. So first criteria is set here, identification of a problem domain and detail analysis, right? So I just paste the criteria here. First criteria pasted here. Now the value that is the you can see that is the criteria. अब उस criteria के against में value क्या है, level क्या है. So I said कि value 5 वो क्या है, excellent. Value 5 is excellent और उसकी definition क्या है, here descriptions में I just put here detailed and extensive explanation of the purpose and need of the project, right? These are 5 number. I just add one more here, so I put it 4. Now 4 क्या है मेरा, good. Just let me copy good, and description क्या है good की, here. Now add one more. इसकी वैल्यू है मेरी 3 और 3 है एवरेज, और एवरेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, आई जस्ट पुट इट हियर, एवरेज, एंड ऐड वन मोर. सेकंड है एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल की डेफिनेशन मेरी ये है, और ये मेरा एक्सेप्टेबल. लेट्स कॉपी एंड जस्ट टू सेव आवर टाइम. ओके, नाउ ऐड वन मोर 0. It means not acceptable, right? Not acceptable, right? और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, it's fair. So this is again my you can see first criteria base पर ये 5 हो गया. So I can add one more criteria here. Again you can see add a criteria. So let's add one more criteria. और उस criteria का next क्या है, that is the criteria study of the existing system and feasibility of the project proposal. So that is the criteria. So I just put the criteria here, and again same thing, 5 points, उनकी values क्या हैं, right, descriptions. अगेन वही 5 पॉइंट्स की मैं इसको सेट कर रहा हूँ, राइट. सो सेकंड 4 पॉइंट इज गुड, so add 4 and it's good.
एंड गुड की डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस वन, एंड देन थर्ड इज माय एवरेज. The second criteria is set here. Just copy and paste. Right. Now, number 2 पे acceptable, and इसकी criteria क्या है? This one, the definition, and number 0 is not acceptable. और इसका description ये रहा. Right. So like that you can add one more criteria, one more, like that you can create a your criteria based on that you are going to evaluate. कितने भी criteria आप add कर सकते हैं और उसके 5 ये evaluators हो सकते हैं. Just click on save. So मैंने एक rubric generate कर लिया. Here you can see I generate a rubric. Now just assign. Right. Just assign. रिपीट कर देना इसको सर. हाँ कर देते हैं. तो नाउ जस्ट सी, अभी मैंने आपको 2 असाइनमेंट जनरेट किया इसमें गूगल क्लासरूम में. माय रिक्वेस्ट कि आप दोनों को अटेम्प्ट लीजिए, कुछ 2-4 स्टूडेंट अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट आई कैन लेट यू नो कि रूब्रिक को कैसे आप असेसमेंट करोगे और नॉर्मल असाइनमेंट को आप कैसे एक्सेस करोगे. सो जस्ट 2-3 स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेंट कैन प्लीज रिप्लाई मी ऑन माय यूनिट 1 असाइनमेंट एंड यूनिट 2 में रूब्रिक असाइनमेंट. दोनों को जरा एक बार आप प्लीज रिप्लाई कीजिए. आफ्टर दैट आई लेट यू नो कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में एवेल्युएट करने का. वो तो मैंने रूब्रिक जनरेट कर दिया, एक असाइनमेंट में रूब्रिक जनरेट किया है और एक असाइनमेंट विदाउट रूब्रिक है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? सो प्लीज submit 2-3 person, only 2-3 participant your assignments. Here I can see assignment में अगर मैं देखता हूँ 4 turned in, good enough number है मुझे. और इस असाइनमेंट में मैं देखूं अभी तक टर्न इन कोई नहीं आया है. सो 1 टर्न इन, ओके ग्रेट. आई थिंक इनफ टू जस्ट टू शो यू कि एक टर्न इन हो गया है. तो हियर आई कैन सी कि टोटल 73 को असाइन किया था, ये टोटल 73 पार्टिसिपेंट्स थे और एक ने सबमिट कर दिया है. और जैसे नॉर्मल असाइनमेंट को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आउट ऑफ 74 को असाइन कर दिया है. राइट. सो 3 कमेंट्स भी हैं यहाँ पर, मैं आई कैन सी हियर 3 कमेंट्स हैं. राइट. और कमेंट्स भी मैं हर मटेरियल के साथ देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी आए हैं. राइट. सो हियर एंड दिस रूब्रिक असाइनमेंट पे मैं देखूँ तो 1 टर्नमेंट रूब्रिक असाइन करने वाला अंडर यूनिट 2 में आपको ये दिखेगा. अंडर यूनिट 2 यू विल फाइंड व्हिच इज रिफ्रेश द पेज. You will find कि यूनिट 2 में आपको रूब्रिक असाइनमेंट 3 person, okay great, 3 participant you submitted the assignment. Okay, now let's come to the how I can evaluate this one. Let's first see कि नॉर्मल असाइनमेंट को मैं कैसे इवेल्युएट करूं. पहले नॉर्मल असाइनमेंट को देखता हूं, फिर रूब्रिक को देखेंगे. तो यूनिट 1 में मैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है मेरे पास व्यू असाइनमेंट. क्लास वर्क में व्यू असाइनमेंट में मैं आता हूँ. राइट. सो व्यू असाइनमेंट में आई कैन सी कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से 5 टर्न्ड इन. So here I can see 5 the turn in option is here. Green color में आप देख सकते हैं turn in and assigned. Assigned means not turned in. So let's first को मैं जैसे एक बार व्यू करता हूँ इसको. फर्स्ट असाइनमेंट ये नॉर्मल असाइनमेंट थी मेरी. राइट. उसको मैं व्यू कर रहा हूँ यहाँ पर असाइनमेंट को. Okay, so you can see, okay, social distancing, oh great, assignment submission by 1. So I make it that student, first student where I selected this one, right? So I make it mark as, here you can see grade 10 by 10, done and return, done. तो ये असाइनमेंट ऐसे में असाइनमेंट मार्क कर सकता हूँ. देन यू कैन सी और डायरेक्ट यहाँ से भी डायरेक्ट नंबर असाइन कर सकता हूँ. राइट. सो यहाँ से भी डायरेक्ट में नंबर दे सकता हूँ. और डायरेक्ट कोई भी असाइनमेंट ओपन करने पे जब मैं देख रहा हूँ असाइनमेंट को, सो लेट्स दिस वन, आई विल ओपन दिस असाइनमेंट और यहाँ पर उसके आंसर्स को देखते हुए इमीडिएट आई कैन पुट दी मार्क्स हेयर एज वेल. तो डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकता हूँ. और कोई फाइल अगर अटैचमेंट है सेपरेट, आई कैन सी द अटैचमेंट फाइल इज हेयर. चेंज भी कर सकता हूँ टोटल पॉइंट्स को. रिटर्न दिस सबमिशन और रिटर्न मल्टीपल सबमिशन, बोथ ऑप्शंस आई हैव. राइट. सो लाइक दिस इज द वे ऑफ सिंपल असाइनमेंट. और मैं यहाँ पर वो असाइनमेंट्स के
मार्क्स डायरेक्ट भी एंटर कर सकता हूँ, और गो थ्रू एक एक को आपको रीड करके भी आप उसके असाइनमेंट को मार्क्स को एंटर कर सकते हो. अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली पुट दी assignment here, right? Great. Okay, now let's see. अब हम रूब्रिक वाला कैसे क्रॉस चेक करेंगे. ये तो मैंने फ्यू स्टूडेंट्स को, मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को दे दिया. नाउ कम बैक टू दी हियर रूब्रिक असाइनमेंट class work in unit 2. Here is the rubric. I can see 6 turned. View assignment. Great. So पहला असाइनमेंट मैं ओपन करता हूं यहाँ पर. ओके, तो पहला असाइनमेंट ये ब्लैंक है, तो मैं नेक्स्ट कोई ओपन करता हूँ, किसी में अगर कुछ कंटेंट अवेलेबल है. ओके, जैसे ब्लैंक फाइल्स हैं सारी, कोई अगर किसी ने कुछ टर्निंग में कुछ 6 असाइनमेंट हैं. ओके, लेट ओपन दिस वन. इसमें कुछ मुझे कंटेंट दिख रहा है. या फिर यू कैन सी ओके फ्यू कंटेंट है असाइनमेंट में अगेंस्ट द स्टूडेंट पार्टिसिपेंट ने सबमिट किया, बट यहाँ पर मैंने रूब्रिक किया था. यू कैन सी हियर रूब्रिक. पहला मेरा क्राइटेरिया क्या था? आई कैन जस्ट हियर सेलेक्ट, आई कैन ड्रॉप डाउन दिस वन, आई कैन सी हियर, राइट. और एक नई विंडो पे भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ. तो दिस इज माय रूब्रिक क्राइटेरिया. ये मेरा क्राइटेरिया था रूब्रिक का, और ये मेरी उसके अगेंस्ट में मार्क्स थे. तो मैंने इसको रीड आउट किया. देन आई थिंक कि ओके बेस्ड ऑन दिस इज गुड नंबर 5. तो यहाँ से सीधा मैंने नंबर 5 इसको असाइन कर दिया बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया. यहाँ पर 5, और इनकी वैल्यूज क्या थी आप यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं. दिस इज दी वैल्यूज. और न्यू विंडो में ओपन करके कंप्लीट रूब्रिक आप यहाँ पर भी इसको प्रोसीजर कर सकते हैं. प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक. अदरवाइज डायरेक्टली हेयर यू कैन जस्ट पुट यू नो आपने क्या क्या पॉइंट सेट किए यहाँ पर. यू कैन सी फर्स्ट इज 0, 2, 3, 4, 5. You can directly say 0 point not acceptable, or directly say excellent also. So like that you can choose rubric and set the marks based on the criteria here, right? So any comment, if you wish to make any comment, so you can directly make a comment, right? And it's done. So you can see the difference between normal assignment and rubric assignment, right? And it's done, right? Okay, so now you can see I or directly I can enter the again grades from here. If it is you can see one by one directly I can come here and mark the like this one. I can directly come here and marks the directly here. You can see it automatically saving from here via my rubric structure. So I'm directly I can just marks the points from here directly from the rubric structure, right? So like that you can use this rubric. Great. So now is save. So this is how the assignment is done. Now let's see to one more assignment part. Or parallelly in the fourth option, if I come to the fourth option, grade, parallel, you can see I have created 2 assignment. एक unit 1 का assignment था with a 10 point and one is rubric. So here I can see the overall grades. Here you can see one 10 point in randomly I give the grades. So here you can see the or grades here 10 out of 10 how that grades awarded here. So you can have a complete grade book here, complete grade book in the grade, and that you can download. Sorry, that you can download in a Excel, or let me open this assignment, right? And you can, here is the option, copy all Google Sheet or download all grade in CSV, or download these grade as CSV, or all grade. So that's all. So I can download the all grade in Excel file as well. It's opening. So here you can see 2 assignments थी हमारे पास. दोनों assignments में, और unit 1 की assignment थी
तो यू कैन सी 10 मार्क्स जिनको भी मैंने असाइन किए थे, फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो मार्क्स मैंने असाइन किए थे, सो आई कैन सी हियर टोटल दैट मार्क्स जो मैंने दिए हैं यहाँ पर, सो यू कैन सी द मार्क्स आर हियर. Unit 1 assignment, rubric assignment, and 3 are assignments. Great. Okay, now let's come back to the again more assignment. Come back here to the course, guys. Now rubric को कैसे किया था एक बार just quickly देख लीजिए. How we generated the rubric again quickly just have a look. Class work में जाने के बाद create and assignment. Create assignment और असाइनमेंट में एवरीथिंग विल बी सेम कि टाइटल क्या है और क्या मटेरियल क्या है असाइनमेंट का. इट इज वाया योर गूगल ड्राइव लिंक फाइल और यूट्यूब दैट एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट यू कैन अपलोड हियर और you can create instant any assignment via Google Docs, slide sheet or drawing or form. Instant you can create any assignment and then here to which course that assignment need to be visible, student, points, due date, topic, then here is the option rubric. Then you need to define what will be the rubric. So let me edit this one, rubric assignment. Here, edit. So everything I defined. So here I defined the rubric. So in the rubric, you know that I need to define two things in the rubric. कि criteria क्या होगा और उस criteria के base पर that points क्या होंगे. That first criteria I set here कि जैसे just a sample, just a sample. So that can be anything. Identification of problem and detail analysis. Or then I put this criteria कि excellent का 5 goods and the description as well. ये excellent है तो then there is the meaning of excellent is detailed, extensive explanation of the purpose and need to project. So like that, you just one time you need to set this your rubric criteria at once only. Then you can set this rubric, reuse this rubric with any assignment, right? And then like that you can then assessment point of time you can just based on the rubric assess the student's grade, right? Okay, so finally all grade will be appear here in the grade. So जितनी भी assignment हम generate करेंगे class work में, that automatically will visible into the grades. Automatically यहाँ पर आपको complete grades दिख जाएंगे. अब हमने अभी तक 2 ही assignment generate की हैं. You can see all assignment will be visible here with the grades. Now let's generate one more assignment. Okay, we'll come to the class work, right? So in the class work, okay, here, sorry, in the class work, come to the class work and create the, refresh the screen. Yes. So in the class work, here is option create on the top of the page. So in the create now, let's see quiz assignment. This is the second type of assignment. So in the you know in the that as per SWAYAM quadrant approach, so that SWAYAM says that you need to perform three type of activity like online assignment and discussion form and quiz. So online assignment हमने देखा अभी via Google Form how we can generate this online assignment via Google Form, Google Classroom. Now let's see how we can generate the quiz via this Google Classroom. So here is second option, create quiz assignment. So it's the same like we are using Google Form. The same like Google Form. You can see everything is same. बस यहाँ पर एक ये देखिए quiz Google Form का एक ऑप्शन आ गया. Otherwise it will be same, everything will be same. So now title is quiz assignment quiz. Any instruction if you want to make compulsory hai usme marks and like that. And here is the blank quiz. So just click the blank quiz. So then again Google Form will open, right? So I said quiz for or I just said demo quiz और quiz का क्वेश्चन क्या होगा. I can put like
I can put OER and okay, so I can put it here, open educational resources, option 1 resource, option 3 okay, like that I can want this one is my options and answer key is here, point is 1 and done is required. So like that I can create a number of question, add and just do little bit setting key, limit one response only, okay, and collect email address and like that if you okay, immediately after each submission we will later manual review and save. So मैंने एक quiz यहाँ पे generate कर दिया and that automatically mapped with my this quiz. ये मेरी quiz जो है ये that I generated here as a same Google form. So again I have to mark ये कितने point का है, due date क्या है, इस क्विज का के कब तक फिनिश करनी है, कौन से टॉपिक में होगा और रूब्रिक अगेन यू कैन डिफाइन हियर. मैंने पहले से रूब्रिक बनाया हुआ है सो आई कैन यू कैन सी रीयूज रूब्रिक. सो मैं ये रीयूज भी कर सकता हूँ रूब्रिक मेरी जो बनी हुई है ऑलरेडी. अदरवाइज विदाउट रूब्रिक यू कैन सी मैंने ये रीयूज मेरा मैं कर सकता हूँ कोई भी. अदरवाइज आई कैन विदाउट रूब्रिक, क्योंकि एमसीक्यू है यहाँ पर कोई रूब्रिक का मतलब बनता नहीं है. रूब्रिक ऑलवेज कम विद असाइनमेंट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसी के साथ हम कर सकते हैं, राइट. okay then here again same option schedule or draft and immediately assign. तो मैंने एक क्विज बनाया और असाइन कर दिया. सो लाइक दैट यू कैन सी यूनिट 2 में ये मेरा क्विज है. तो स्टूडेंट्स इसको क्विज को अटेम्प्ट ले सकते हैं. ओके नाउ टेक अटेम्प्ट, उस क्विज को अटेम्प्ट लीजिए. okay so like that we can create a quiz and material and post and people grade everything is are here. Now let's see few more things. Now you can see in the grade one more assignment is automatically added, quiz and 10 marks whatever I set here. तो एक ग्रेड में कंप्लीट ग्रेड बुक ये ऑटोमेटिक सेट होती चली जाएगी बेस्ड ऑन द असाइनमेंट वी हैव जनरेटेड अंडर द क्लास वर्क. Right, so and in end of the class you can take a complete print out or download the Excel, complete this grade book and submit to your examination department at any point of time, right. So in the pupil any point of time you can remove. In the class work option, third option, you can upload the material and generate the assignment. In the stream you can see the all notices will be appear here, right. All notices will be appear and parallelly that email correspondence will also the email correspondence will also shared by this email, that teacher and between teacher and student. And here you can see upcoming. So these are 3 assignments. You can see their upcoming due date is here is showing it due date is date को ये assignment that will be due date on this one. So the 3 assignment है यहाँ पर, so that will be appear here. Now let's show you the comparison between G-Shoot Google Classroom and Gmail Google Classroom. दो चीजें अलग-अलग हैं. Otherwise features are ditto same, everything will be same, and let's see the difference. So here one more thing you can change you can see select theme or upload photo. Let's change this upload photo in the Google Classroom. You can grade if let me see अगर कोई फोटोग्राफ मेरे पास है तो I don't have any photograph. Otherwise you can upload any photograph. नहीं अभी कोई इमेज नहीं है. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कैन सी अपलोड फोटो. ये जो बैकग्राउंड फोटो आप देख रहे हैं यू कैन अपलोड एनीथिंग. एक बैनर
खुद से बना करके अपने प्रोग्राम का, यू कैन अपलोड इट, और ए थीम यू कैन चेंज, एनी बैकग्राउंड थीम इज हियर, यू कैन सी काफी अच्छी अच्छी थीम्स हैं यहाँ पर, तो यू कैन चेंज द थीम एज वेल, राइट, और अपलोड दी फोटोज। और हियर इज द ऑप्शन रीयूज दी पोस्ट। कोई भी पोस्ट अगर आपको रीयूज करनी है, यू कैन फ्रॉम एनी क्लास, कहीं से भी, यहाँ जैसे मटेरियल में मैंने आपको दिखाया था रीयूज दी पोस्ट, सो हियर आल्सो यू कैन रीयूज एनी पोस्ट, राइट। ओके, तो ये जीमेल का एक गूगल क्लासरूम है। एक आपको मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, काफी सारे विंडो ओपन हो गई हैं, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। लेट मी क्लोज। ओके, yes, see, this is my classroom on Gmail, right? This is my classroom on Gmail, gmail.com, right? And here my classroom on G Shoot account. So those who have G Shoot account, now let's see the difference क्या मिलेगा आप उसमें, दोनों में difference क्या है, correct? So ये मेरा आप देख सकते हैं that there is a G Shoot account, my G Shoot account का मेरा Google Classroom है, राइट, और ये मेरा जीमेल का गूगल क्लासरूम। अब डिफरेंस आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। अगर मैं क्लास वर्क में आता हूँ, यहाँ पर देखिए देयर इज ऑप्शन मीट, जो कि यहाँ पर नहीं है। मीट ऑप्शन आप देखें क्लासरूम में, यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। अब मैं जी शूट में आता हूँ तो देन यू विल फाइंड ऑप्शन मीट। मीट मीन्स I can directly schedule my live session, Google Meet session within the classroom. क्लासरूम में ही मैं अगर सिंपल इस पे आता हूँ, that I just G Shoot account, और you can see मैं डायरेक्टली अपनी क्लास को गूगल मीट पे इमीडिएट, जैसे कि अभी स्टूडेंट को मैंने टाइम दिया कि दैट टाइम tomorrow 10 to 11 there will be a meet session, so you can directly just click on this one and student can join immediately, or via Google Calendar as well. Google Calendar तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो गूगल कैलेंडर से भी आप जस्ट गो टू द गूगल कैलेंडर, राइट। ओके, गूगल कैलेंडर में मैं जाता हूँ और एक क्लास में सपोज यहाँ से ऐड वीडियो मीटिंग, और इसको मैं ले लेता हूँ लाइव क्लास, राइट, और इसको कॉपी किया लिंक को, एंड सेव। अब मैं गूगल क्लासरूम में आके यहाँ सेटिंग में एक ऑप्शन होती है, नोट है इसमें होगी वो, जी शूट में आप पाएंगे, ये देखिए मीट की एक ऑप्शन होती है जी शूट में। ये भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि वो लिंक क्या था जो क्लासरूम का जनरेट किया था, तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस लिंक को आप रीसेट भी कर सकते हैं। दैट मीट का जो ऑप्शन है ये जी शूट में ही मिलेगा आपको, जीमेल में नहीं। अदरवाइज जीमेल में आपको गूगल मीट यूज करना है तो ये आपको सेपरेटली क्रिएट ए सेशन वाया गूगल कैलेंडर, और उस लिंक को आप सीधा यहाँ स्ट्रीम में पेस्ट कर सकते हैं, राइट, यहाँ पर, राइट, कि देयर विल बी ऑनलाइन क्लास, इट इज अल्टरनेट। और थोड़ा जी शूट में थोड़ा इमीडिएट फीचर मिल जाता है कि आपको जस्ट सिंगल क्लिक पे आप ये कर लो, अदरवाइज वही काम हम जीमेल वाले क्लासरूम पर भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम सिंपल विल डिसाइड कि देयर विल बी ऑनलाइन क्लास ऑन 24 जून, और ये उसका यहाँ पर ये देखिए ऐड लिंक, और मैंने लिंक को कॉपी किया, ऐड लिंक एंड पोस्ट। ठीक, मैंने स्क्रीन पर ही, अगर मेरे पास मीट का ऑप्शन यहाँ जीमेल में मीट ऑप्शन नहीं है तो उसको अल्टरनेट के तौर पे मैं स्क्रीन में आया, स्क्रीन में आके मैंने एक नई पोस्ट जनरेट की और उस लिंक को यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो लाइक दैट इज नॉट अ बिग इशू कि अगर वहां पे ऑप्शन है और यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू स्टॉप आवर वर्क, नहीं, वी हैव अल्टरनेट। अब स्क्रीन में आके डायरेक्ट कर दो, राइट, सो डायरेक्ट ये स्टूडेंट को ईमेल भी चला जाएगा और स्टूडेंट कैन ज्वाइन डायरेक्टली फ्रॉम हियर, राइट। सो जी शूट अकाउंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर है यहाँ पे जी शूट वाले गूगल क्लासरूम में कि मैं जर्नल में जाके उसको
चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखें क्लास कोड को भी चेंज कर सकता हूँ सेटिंग में जाके, तो वहां पर भी ऑप्शन था। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए आप स्ट्रीम में जो नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आई कैन रिस्ट्रिक्ट कि स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट और ओनली टीचर कैन पोस्ट और कमेंट। अभी आप भी कमेंट कर पा रहे होंगे, बट मैं एज ए टीचर उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि ओनली टीचर पोस्ट और कमेंट, और स्टूडेंट उसमें कमेंट स्ट्रीम में जो फर्स्ट पेज पर स्ट्रीम ऑप्शन है वहां पर कोई कमेंट ना आए। और क्लास वर्क ऑन द स्क्रीन, so that I can also hide notification, that I can control from these settings, right? So that is the option of the G Shoot. एंड वन मोर ब्यूटीफुल ऑप्शन इन दी जी शूट, आई थिंक वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जिसका कोई अल्टरनेट जीमेल पर नहीं है। ओके, जीमेल गूगल मीट का तो अल्टरनेट हमने ढूंढ लिया कि गूगल मीट का डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ है, अगर जीमेल पे नहीं है तो वी कैन शेड्यूल वाया दिस स्ट्रीम ऑप्शन, राइट। बट एक ऑप्शन अब अगर आप यहाँ पे देखें, आई लेट्स कम ऑन दैट, अभी अभी मैं जी शूट वाले क्लासरूम पे हूँ और मैं एक असाइनमेंट जनरेट करने जा रहा हूँ, राइट। तो वही ऑप्शंस हैं सारी, एक एडिशन ऑप्शन आप यहाँ देखिए, रुब्रिक भी है और सारी ऑप्शन है जी शूट वाले अकाउंट पर, बट एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे दिख रही होगी, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट। ये सिर्फ जी शूट पर ही दिखेगी। एक ओरिजिनलिटी रिपोर्ट आप अगर देखें ये जी शूट पर, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट जैसे ही मैं इसको चेक कर दूंगा, मीन्स मतलब क्या हुआ इसका कि जो असाइनमेंट स्टूडेंट अपलोड करेंगे, जैसे आप कोई असाइनमेंट डिसर्टेशन थीसिस का एंटी प्लेगरिज्म चेक करते हैं वाया आउटबाउंड ऑथेंटिकेट टर्मिनेटिंग, एक ये सोर्स हैं एंटी प्लेगरिज्म चेक करने के सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सेम हियर इट्स मैं ये नहीं कहता कि टर्मिनेटिन और उरकुंड की तरह ये स्ट्रॉन्ग है, वैसा नहीं है, बट इफ आई क्लिक ऑन लर्न मोर, आई जस्ट लेट यू नो कि इसका मतलब क्या है। कि ओरिजिनलिटी चेक का मतलब कि स्टूडेंट जब असाइनमेंट अपलोड करेंगे दैट विल ऑटोमेटिकली चेक बाय गूगल एनालिटिक्स कि स्टूडेंट ने कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, प्लेगरिज्म सिमिलैरिटी से टर्न ऑन प्लेगरिज्म में आप देखिए दैट इस सेज की three assignment in a classroom we can check. So when you turn on the originality report, you and your student can check work for authenticity. Originality report use Google search. Just be careful, listen. The originality reports use Google search to compare a student work against billion of web pages and million of books. जो गूगल के सर्च इंजन में है उनके साथ ओरिजिनलिटी रिपोर्ट लिंक टू बी डिटेक्टेड वेब पेजेस एंड फ्लैग अनसाइटेड टेक्स्ट। ये ओरिजिनलिटी रिपोर्ट का मतलब है दैट अवेलेबल ऑन दी जी शूट फीचर ओनली। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन थोड़ी ये है, हियर इज द लिमिटेशन, यू कैन टर्न ऑन ओरिजिनल रिपोर्ट फॉर 3 असाइनमेंट पर क्लास, 3 असाइनमेंट पर क्लास। बट उसका भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 20 स्टूडेंट हैं तो क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा जनरेट कर लीजिए। अगर आपको ओरिजिनलिटी रिपोर्ट चाहिए तो डुप्लीकेट क्लास मिनट में आप 1 सेकंड में क्लिक डुप्लीकेट क्लास आप जनरेट कर सकते हैं, तो हर क्लास के साथ ओरिजिनलिटी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। दैट फीचर इज अवेलेबल विद इन दी जी शूट अकाउंट ओनली। सो सारा फीचर ये गूगल क्लासरूम जिनके पास जी शूट अकाउंट है, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट के पास एक ऑप्शन आती है लर्न मोर। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लर्न मोर, सो यू विल फाइंड दीज ऑल दी क्वेरी की कहाँ से चेक मिलेगा, कहाँ से यू कैन सी हाउ टू हाउ मेनी रिपोर्ट स्टूडेंट पर रन, हाउ लॉन्ग रिपोर्ट दैट अवेलेबल, सो इट विल अवेलेबल अप टू 45 days. The originality report are viewable for 45 days. So after that you can another report connect in the grading tool, so like that you can do. और turn on report when to create assignment कैसे करना है, how to check, here is the option how to check class work, edit, run the originality report. Steps are mentioned here. Run the originality report to submit the work, so that will show you the originality similarity index from the
Google analytic tools like that, right? So G-Shoot is freely available for all the universities without spending a single rupees. If anyone don't have a G-Shoot account, so they can just ask your university. They will coordinate with the Google and they can get the that Google the G-Shoot account within 1 day free of cost. Right? It's not for individual; it's for university level. So like that, you can check this originality report. And one more thing is here. Yes, when you create the quiz assignment in G-Shoot account, G-Shoot account पे जब मैं quiz assignment generate करता हूँ कि द एक्स्ट्रा फीचर अब क्या दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, एक तो वही दैट ओरिजिनलिटी रिपोर्ट पर एमसीक्यू में इसका कोई मतलब नहीं बनता, दैट दैट रिलेटेड विद द असाइनमेंट. नाउ यू कैन सी वन मोर ऑप्शन, ग्रेड इंपोर्ट. एक ऑप्शन और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट ग्रेड इंपोर्ट ऑप्शन. ग्रेड इंपोर्टिंग ऑप्शन मीन टू से, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और क्लास वर्क जो अभी मैंने एक असाइनमेंट जनरेट किया था ना अभी यूनिट 2 में, ये वाला ओके 3 क्लास कमेंट्स आ गए, डन डन गुड. अब मैं व्यू असाइनमेंट पे आता हूँ. टर्न इन, राइट. तो आप यहाँ पे देखें नो ग्रेड, कोई ग्रेड मुझे नहीं दिख रहे हैं. तो मैं उस असाइनमेंट जो मैंने जनरेट किया था क्विज असाइनमेंट, अब मैं चेक कैसे करूँ? जीमेल पे जो मैंने क्विज असाइनमेंट जनरेट किया था, हाउ डू आई चेक दिस असाइनमेंट, राइट. अब असाइनमेंट तो इन्होंने सबमिट किया हुआ है, बट हाउ डू आई चेक दिस असाइनमेंट? यू कैन सी टर्न्ड इन, टर्न्ड इन. तो यहाँ पर मुझे आई हैव टू गो बैक ऑन दी गूगल फॉर्म जो मैंने बनाया था अभी. मुझे गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स में जाना पड़ेगा. Where is that Google form recently I have created? Let me open that form just to show you. Where is that? किस नाम से बनाया था? नाम भी इसका डेमो क्विज था सर. डेमो क्विज था. ओके, डेमो. डेमो क्विज, डेमो क्विज था सर. डेमो क्विज. डेमो क्विज सर जी डेमो क्विज नाम से था. एक मिनट में वहीं से ओपन कर लेता हूँ डेमो क्विज को. सर ब्लैंक क्विज है, ब्लैंक क्विज. हाँ, मैं ये रहा डेमो क्विज ना, मैं इसको यहीं से ओपन कर लेता हूँ. किस नाम से था? ये रहा डेमो क्विज, राइट. तो आई हैव क्रिएटेड दिस वन इन माय गूगल क्लासरूम. तो मुझे अगर मुझे रिस्पॉन्स चेक करने हैं तो मुझे उसी गूगल फॉर्म पे जाना होगा. उसी गूगल फॉर्म पे Here you can find with blank quiz name. Blank quiz is visible. ब्लैंक. सर गूगल फॉर्म में जाकर सर्च करिए सर, ये तो ड्राइव में है सर. ब्लैंक क्विज ये रहा ना. ब्लैंक क्विज ये रहा, मिल गया. No sir, this is Excel sheet. Response है. Yes, response that I'm looking at the response as only. So you can see response मेरे पास ये है, that I have to check in Google that form का जो response आता है उसी में जाकर मुझे चेक करना होगा. बट जो Google Classroom में ऑप्शन है, सॉरी G-Shoot वाले जो Google Classroom में क्या ऑप्शन है, इन ग्रेड इंपोर्ट. तो मुझे प्लीज अगर मैंने यहाँ कोई जनरेट कर रखी है और मैं जब व्यू असाइनमेंट में आता हूँ तो आई हैव ए ऑप्शन इंपोर्ट ग्रेड. Here you can see import grade means जो रिस्पॉन्स में जो ग्रेड थे गूगल फॉर्म के, वो डायरेक्टली आई कैन इंपोर्ट इनटू दी गूगल क्लासरूम. बट जीमेल में मुझे अगर वो क्विज मैंने बनाया है देन आई हैव टू गो दैट पर्टिकुलर फॉर्म, तब वहां पे जाके मुझे उसको एनालिसिस करना होगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द import grade from if I am using quiz in G-Shoot account और गूगल अकाउंट. दोनों जीमेल अकाउंट में, दोनों में अगर मैं क्विज असाइनमेंट यूज कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा ऑप्शन इन G-Shoot अकाउंट, इंपोर्ट ग्रेड. इंपोर्ट ग्रेड, that is the features. and one feature is that storage. I think that already told you कि 15 GB आपको जीमेल में मिलता है एंड 5 GB आपको
इसमें जी शूट अकाउंट में मिलता है. दैट इज द डिफरेंस. And let me see if anything else is pending in the if I cover here, and then I think continue with something else point. The Google Classroom I think is enough. Pupil grade. So let me see if अगर बीच में कुछ याद आता है. Now let's see 2-3 more Google tools अगर कुछ में यूज करने हैं. So here you can see these are the all Google apps. इन Google ऐप में से एक पार्ट है हमारा Google Classroom, right? और Google Meet भी हम यूज कर सकते हैं within the Google Classroom to take the live class. Live class के लिए Google Meet you can schedule a session live class, right? लाइव क्लास एक इम्पोर्टेंट चीज और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा. when you click on when you start a Google Meet meeting just now, suppose see here you can see we are on Google Meet session, right? तो जब आप via Google Classroom या डायरेक्टली भी Google Meet session for your student क्रिएट करेंगे, कोई भी सेशन जनरेट करेंगे, then how you can take attendance of your students. ऑनलाइन अटेंडेंस उसका एक डिफरेंट पर्पस है अटेंडेंस लेने का. देन देयर इज ए ऑप्शन, देयर इज अ टूल अवेलेबल, मीट अटेंडेंस. मीट अटेंडेंस. सो मीट अटेंडेंस एक क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन है दैट यू फर्स्ट नीड टू इंस्टॉल इन योर ब्राउजर, राइट? First you need to install your browser, and after that once you install this one then come to your Google Meet जहां पर आपका सेशन चल रहा है, right? And then just click on here, you can see participant, total participant I can see here 227 total participants are here. तो अगर मुझे अब इन 227 पार्टिसिपेंट्स के नाम रिकॉर्ड करने हैं तो कैसे करने होंगे? तो उसके लिए मैंने एक मीट अटेंडेंस क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन ऐड किया. When I click these people, now just have a look, कुछ counting increase हो रही है यहाँ पर. That counting is done. Something is happening on my screen. That's happening just because of I have installed the Meet Attendance. Meet Attendance मैंने install किया हुआ है, so that's why it's happening like that. So once it's reached up to 2 to 6, then I'll show you one more thing. Okay, now you can see capture the whole name. When I click on this one here. Now one Google Sheet will open, and here you can see timestamp 20th June 11:55. That is the timestamp. That is the Google Meet link. और उसके नीचे आप देखिए all 226 सारे नाम कैप्चर हो गए इन सिंगल क्लिक में. In a single click you can see whole name is captured. 2 to 6 जितने 2 to 7 जितने भी नाम थे ऑन एट प्रेजेंट जितने भी ऑनलाइन थे हम उन सबके नाम इन ए सिंगल क्लिक आई हैव कैप्चर्ड. सो लाइक दैट वी कैन रिकॉर्ड कि एट प्रेजेंट अब कौन कौन लाइव था. तो इट्स ए वे टू कैप्चर द अटेंडेंस. उस अटेंडेंस को आप स्टूडेंट की अटेंडेंस को इन बिटवीन कभी भी आप जैसे सिंगल क्लिक और टेके अटेंडेंस की आप इसको all name will be captured. You can see in a single click I captured the whole 2 to 6 name. Otherwise you know it's very difficult कि मुझे अगर एक एक नाम को रिकॉर्ड करना है तो कितना मुश्किल होगा. अभी आप जो अटेंडेंस गूगल फॉर्म के थ्रू दे रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट पर्पज है उसका. इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप कहें कि गूगल फॉर्म को रिप्लेस करके आप ये क्यों नहीं यूज करते. नहीं, आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग देयर इज अ डिफरेंट पर्पज. उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर वो गूगल मीट यूज करेंगे. सो दैट फॉर दी जस्ट टू कैप्चर द नेम ऑफ दी स्टूडेंट जो अभी ऑनलाइन है इन ए सिंगल क्लिक और मल्टीपल टाइम. वो एक बार नहीं, आप जितनी बार चाहें, मैं जितनी बार भी अब पीपल पे क्लिक करूंगा उतनी ही बार that attendance will start recording again. You can see now it's again capturing the name क्योंकि any point of time स्टूडेंट्स का नंबर कभी 70 कभी 80 कभी 90 कभी 100 ये अप डाउन होता रहता है. तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम हर मिनट में जितनी बार चाहें आप ये नाम को कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग मीट अटेंडेंस. तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक मीट अटेंडेंस टूल है, मीट अटेंडेंस क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करना होगा. ये यू कैन सी हियर
that Apple symbol that I have installed in my extension. And once I click on this one, it again open this sheet and all name, सारे name यहाँ पर दिखा देगा मुझको कि it's recorded here, all name is recorded here. It's opening. This Google Sheet is opening. It's working. Just hold on. It's working. So whole name is again. I think it's not. Let me click again. Capture the name again. It should be visible. The internet is. It will take time. There are 2:26:09. So it will take 1 to 2 minutes to capture the name again. So again, that name will be appear. Okay, we'll check it after 2 minutes back again here. So the name definitely will be visible here. Just wait for 2 minutes. It's recording the name. The whole name is visible in that. So like that Meet attendance, that is the Meet attendance. You can see, just install the browser and you can use it, this one, in your attendance लेने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं. तो इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. हम सिर्फ गूगल टूल्स की बात करेंगे आज. सो गूगल टूल्स में और बहुत सारे फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं. जैसे मीट वी हैव डिस्कवर्ड, ड्राइव इज देयर, Duo, Hangout, Classroom and many things here. Let's cover. यहाँ पर भी एक डिफरेंस आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा. अगर आप गूगल मीट पर्सनल जीमेल आईडी से यूज करते हैं, राइट, अगर गूगल मीट पर्सनल जीमेल आईडी से यूज करते हैं, देन इट विल गिव यू लिमिटेशन अप टू 100 पार्टिसिपेंट. 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा आप गूगल मीट में दैट इफ यू आर यूजिंग वाई योर जीमेल अकाउंट, 100 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, राइट. बट अगर Gshute आईडी के थ्रू आप यूज करेंगे, देन इट विल हेल्प यू अप टू 250. तो प्रेजेंटली यू कैन सी कि हम गूगल मीट पर लॉग्ड इन हैं वाया Gshute अकाउंट. सो दैट्स व्हाई इट्स फैसिलिटेट अस कि हम अप टू 250 पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवा पा रहे हैं इस गूगल मीट अकाउंट में. So if you are using Gshute account, then you have up to 250 user limitation participant की, otherwise it's 100 अगर आप Gmail से कर रहे हैं. And another advantage is कि Gshute account में you will find recording option, but personal Gmail में recording option नहीं होगा. अभी till September तक, due to this COVID situation, Google offering this Google Meet up to 100 with unlimited time. You can run this one is with unlimited time, right? But after September, that will be restricted up to 1 hour only. After September, 1 hour के लिए रह जाएगा, but अभी ये unlimited है. So you can take advantage of this Google Meet feature to just take your class live and अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, देन उसका एक अल्टरनेट भी है हमारे पास. यू कैन ट्राई फ्री कैन, बिकॉज यू आर यूजिंग दिस गूगल मीट वाया जीमेल और उसमें रिकॉर्डिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन, बट यू कैन डू दिस अल्टरनेट. एवरीथिंग, हर चीज के अल्टरनेट अवेलेबल हैं. देन what you can do, just download this option, free tool for creating screencast, that free cam. Then you can you download this free cam application. So I have downloaded here free cam. So there is the alternate कि अगर आपको पर्सनल जीमेल पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, then free cam is here. So here is the option. So I said new recording. So you can see एक ये rectangle option आ गया to record the screen. Okay, just click on start recording here. So now whatever will happen on your screen, that will be recorded. So you can record your session on at your locally. Means अगर हम अभी Gshute की बात करें
So recording, of course, recording is happening, but that recording will be available with the that institution only. After that, later on, they will share with you, right? But any point of time, you can record anything at your end. अभी just 2 weeks before there is a one workshop that is cyber security related एक international workshop हो रही थी. That in that workshop I am as a participant. So but what I did, 3 hour की recordings थी, 3 hour का session था वो. I just open my free cam and record the complete webinar. It's my in my system locally. अब मुझे डिपेंड भी नहीं हूं उन पे कि मुझे आप रिकॉर्डिंग दीजिए या नहीं. I have recorded complete session myself using this free cams that will help you to record with unlimited time. So you can record anything, whatever happening on your screen, right? So that will help you. So free cam is one of the screen recording if you are using this one Gmail, Google Meet personal Gmail account. And another the live classroom tools are here, like Cisco WebEx is here, Zoom is here, Jitsi meeting is here. Many tools are available to do the live classroom, and all are freely available. You need not to pay anything. Everything is freely available. Jitsi meeting, it support up to 75 and it's provide you recording option. And Cisco WebEx, it supports you 100 participants, but it's not provide you recording option, and recording you have an alternate via free cam, you can do it. Zoom is support up to 100 participants. Earlier it was with 40 minutes only, but recently they increased their timing up to 60 minutes. Right? Google Hangout, it supports 25, Skype 50, Slack 15, Big Blue Button 15. So like that, there are many tools are available. In fact, just 3 weeks before, एक हमारे मित्र हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने इतना बढ़िया यूज किया जैसे न्यू इनोवेशन कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाए. बहुत ही अच्छा इनोवेशन उनका मुझे लगा. व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया. दैट ये 40 स्टूडेंट और 10 स्टूडेंट्स में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया, राइट? और क्वेश्चन पेपर, प्लीज म्यूट योर माइक सर 1 मिनट सर. आप लोगों की उपस्थिति चैट बॉक्स में आ गई है, तो कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज कर लें. सब लोगों से निवेदन है. थैंक यू सर. प्लीज कंटिन्यू सर. ओके. सो अभी एक रिसेंट बड़ा ही अच्छा इनोवेशन मैंने देखा, एक बहुत ही अच्छा यूज देखा इन फीचर्स का, टूल्स एंड टेक्निक का. व्हाट ही डिड, वन ऑफ द टीचर इन इकोनॉमिक्स, व्हाट ही डिड, वाया गूगल क्लासरूम ही सेंड द असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स, राइट? वाया गूगल क्लासरूम उसने असाइनमेंट डिस्क्रिप्टिव भी और एमसीक्यू दोनों 2 टाइप में डिवाइड किया, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव बोथ. ही सेंड द असाइनमेंट वाया गूगल क्लासरूम टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स को गूगल मीट पे ज्वाइन करवाया और स्टूडेंट्स को कहा कि अपने गूगल मीट को यू ज्वाइन वाया मोबाइल और गूगल क्लासरूम ओपन वाया योर लैपटॉप. और मोबाइल को जस्ट अपने से 2 मीटर दूर रखिए ताकि मैं आपके डेस्क और आपके कंप्यूटर को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकूं. यू कैन सी देयर इज अ वे ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन. गूगल मीट के थ्रू उन्होंने पूरा 1 आवर या 2 आवर का जो भी इनका एग्जाम था, ही ऑब्जर्व वाया गूगल मीट मोबाइल सेशन के थ्रू. और स्टूडेंट्स ने अपना पेपर पेन पेपर के थ्रू उन्होंने दे राइट देयर आंसर ऑन वाया पेन पेपर यूज किया. और व्हेन आफ्टर 1 आवर दे क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ देयर पेपर और वापस गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया. और ड्यूरिंग दिस एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव 1.5 आवर और 2 आवर जो भी टाइम रहा होगा, the teacher observed the student via mobile Google Meet. So you can see that way of conducting online exam, foolproof exam. Foolproof means कोई चीटिंग का कोई सीन ही नहीं है, वहां पे कर ही नहीं सकता. इट्स लाइक सेम जैसे फेस टू फेस में हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर से, सेम लाइक इन ऑनलाइन दे कंडक्ट द एग्जाम विद द हेल्प ऑफ गूगल मीट एंड गूगल क्लासरूम. दोनों की हेल्प से कंप्लीट एग्जाम कंडक्ट
कर लिया गया. So like that you can just try this one. Okay, that Google Meet and Classroom features. Okay, let me show you. One more thing, I think I should let you know. In Google Tool, if you see in the when you open your Google Drive, right? So Google Drive you will find few options: Doc, Sheet, and Slide. Google Doc is equal to your Microsoft Word, and Google Sheet is equal to your Microsoft Excel. Google Slide is equal to your PowerPoint slide. So ये इसमें options available हैं, right? और मोर में अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड मोर ऑप्शंस. गूगल फॉर्म, यही वही सेम ऑप्शन है गूगल फॉर्म जिसको हम यूज करते हुए रिसेंटली वी क्रिएटेड दी MCQ. गूगल फॉर्म आल्सो हेल्प यू टू जनरेट the questionnaires, surveys to collect the information, or presently you can see that attendance and many things you can do like that. And one more option is here, Google Site. That is really very wonderful feature, Google Site. Once you click on Google Site, so here what you can do, you can create your own site. What does mean of own site? Like कोई website है जैसे just like our university website, जैसे हमारी university की website है ये, right? ओके, और जैसे कोई भी वेबसाइट है, लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है du.ac.in, कोई भी वेबसाइट है, सेम लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट यूजिंग द गूगल site. So you can create your own website. The benefit of is that one, suppose just like अभी अगर कोई आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार या वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, एंड मैनी इन्फॉर्मेशन यू नीड टू शेयर विद द पार्टिसिपेंट, बहुत कुछ होता है शेयर करने को, राइट? अब सारी इन्फॉर्मेशन तो आप मेन वेबसाइट पे बार बार अपलोड करना थोड़ा एक्टिव हो जाता है, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद दी that webmaster that please upload this information on website or this information on website. Or what you can do, just ask once your webmaster कि ये link है that upload on your website, और वो link क्या होगा, your Google site link, right? Once they upload the Google site link, then you have complete control of your site. So after that, you whatever you upload on this site, that will be visible to the public. Means now you have complete control कि कोई भी information आपको public में भेजनी है, share करनी है, you can upload without dependency of any IT person. Otherwise website पे matter upload करना, you know that need a technical person, IT person की requirement होगी, otherwise you are not able to, you are not supposed to upload directly on website. So then Google site will help you to create a such like any website and share, update the material as and when you require, or you can create your own portfolio. And every website you see, आपका एक हर वेबसाइट पे से एक फैकल्टी प्रोफाइल भी होता है, वहाँ पर आपके बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मेंशन भी होती है, वहाँ पे लिमिटेड स्पेस होता है, they write the about the faculty, right? Here you can do just share this, create a Google site, or as much as possible information you can just post on your Google site, write your recent publications क्या हैं, articles, journals जो भी होते हैं recent, आप यहाँ पे up to date रखिए, और इसका लिंक अपने प्रोफाइल में पेस्ट करवा लीजिए जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है. So that also that you know up to date information share करने के लिए, that also help you to create your portfolio. So how to, you can simply generate this website, just go to the new, more, and Google site. So once you click on Google site, that site will open. So you can put any name is here, any background image is here. So you can see upload image and select image. If there is any image, you can upload any background, your image, anything you can upload. Any image is here, or any that logo if you have, you can see any logo you have, you can put it here. Or here you can see the layout. अब कौन सा layout आपको पसंद है, just select this one. So here I can put the event details here,
और एनी पर्सन, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन, और कोई वेबिनार रिलेटेड साइट बना रहे हैं तो इवेंट और न्यूज एंड अनाउंसमेंट, एनीथिंग यू कैन न्यूज एंड announcement, or here I can put events, current, anything, or here upload any photographs or any from Drive or YouTube, any video you can just import any video if you have any video, right? Just upload any video, photograph, anything you can upload here, right? Video is here. Any announcement, anything, image, you can upload it here, and these are the layout. And you want to create any buttons, so you just बहुत ही कम आपको इसके बारे में मैं अभी टाइम की कमी की वजह से आपको सिलेक्टेड फीचर इसका मैं बता रहा हूँ. तो जस्ट पुट द नेम ऑफ द बटन लाइक LMS, और उसका लिंक क्या रहेगा, राइट, एंड क्रिएट. यू कैन सी एक बटन यहाँ पे क्रिएट हो गया. जस्ट हैव ए प्रीव्यू, यहाँ पर ये देखिए प्रीव्यू भी आ गया, और ये कंप्लीट प्रीव्यू वेबसाइट का बनता चला जाएगा धीरे धीरे. एंड यू कैन टेक ए व्यू कि ये टैबलेट पे कैसे दिखेगा, मोबाइल पे कैसे दिखेगा, यू हैव ए लुक, और कंप्यूटर लैपटॉप पे कैसे दिखेगा, यू हैव ए व्यू ऑफ दैट वेबसाइट. कुछ भी आप इंफॉर्मेशन, आप इसमें लिंक हो, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज है इम्बेड कर सकते हैं, वीडियोस हैं, कुछ भी आप इस पे पेज, सपोज यहाँ पे आपको युवा ऊपर मेन्यूज बनाने हैं, देन यू कैन क्रिएट ए मेन्यूज लाइक, यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू पेज. so I create a new page, let's say gallery is new, so I just take it here. You can see one gallery option is here. So within the gallery I want कि okay photo अलग और video अलग से दिखाना चाहता हूँ, so I create a photo, one is here, and videos here. तो यू कैन सी अभी ये पैरेलल में है, सो मैं इस फोटो को उठा के इस गैलरी के अंदर कर देता हूँ नाउ, और इस वीडियो को भी उठा के गैलरी के मिक्स कर देता हूँ. नाउ यू कैन सी अंडर द गैलरी दोनों ऑप्शन आ गया. तो सब नए पेजेस, सब और न्यू लिंक्स, एनीथिंग, बहुत सारी ऑप्शंस हैं. और इसको मुझे लगता है कि अभी आपको एक आइडिया हो गया कि गूगल साइट बन सकती है, क्या इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, और हाउ टू यूज. तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल सकता हूँ कि यूट्यूब पर जाइए और जस्ट टाइप हाउ टू क्रिएट ए गूगल साइट. यू विल फाइंड वंडरफुल ट्यूटोरियल्स अवेलेबल. हाउ टू create Google site. You will find wonderful tutorials are available on that Google site. How to publish. There publish के लिए very simple, यहाँ पे एक option आती है, here is the publish option. So once you publish this site, that will visible to the public. You can create a custom URL, and many things you can do like that. Here you can create a URL or web address or anything. You just take help from the Google tutorials. You will find beautiful options are available, जो मैं शायद अभी 2 मिनट में आपको ब्रीफ ना कर पाऊँ, बट YouTube पे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन लर्न हाउ वी कैन क्रिएट गूगल साइट. बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, राइट. हम भी कभी कभी स्टक हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो विल टेक द हेल्प ऑफ गूगल, यूट्यूब एंड ट्यूटोरियल से बहुत कुछ मिल जाता है. जब ट्यूटोरियल भी हमें तभी हेल्प कर पाते हैं इफ वी नो कि कुछ अवेलेबिलिटी है. अगर मुझे ये पता ही नहीं कि गूगल साइट भी कुछ है, देन ट्यूटोरियल भी मेरे लिए वेस्ट है. इफ आई नो कि गूगल साइट में मैं कुछ काम कर सकता हूँ, then definitely that tutorial will also help me a lot, right? Just go through this one. Okay, so I think it's time to stop myself. And thank you so much for listening me so patiently.